جی اب آپ میں سے کون شروع کرنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس ٹاپک پہ میں نے لکھا ہے، میں بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت بدترین گناہ ہے، لیکن آج کل یہ بہت ہی کامن ہے، خاص کر عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سسرالی معاملات میں تو یہ بہت ہی عام بات ہے۔ ساس بہو کی، بہو ساس کی، نند بھابھی کی اور بھابھی نند کی غیبت کرتی نظر آتی ہے۔ غیبت کر کے ہم اپنی نیکی ان کو دیتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے رشتہ داروں کی غیبت کر رہے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ صرف گناہ کما رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسانی فطرت ہے کہ وہ رشتہ داروں کی بات کا ڈسکشن کرتا ہی کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے رشتوں میں اعتدال رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ اگر دل پہ بوجھ ہے تو آپ یقین جانیں اللہ سے بات کریں، جانے نماز پہ بیٹھ جائیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اللہ کو بتائیں۔ جب ہمیں اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ پھر بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ جس کی بھی غیبت آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے جو برائی اس کے اندر ہے اس کا ذکر اللہ کے سامنے کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک وہ برائی اس کے اندر سے نکال دے۔ غیبت کی وجہ سے بعض دفعہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے۔ جب آپ نیت کریں گے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے جب ہم دین سے جڑیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم غیبت کر کے اپنی نیکی سامنے والے کو دے جا رہے ہیں اور ہم اپنے لیے جہنم کا آگ تیار کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کا عزت حرام ہے، تو غیبت جب ہم کر رہے ہیں تو ہم سامنے والے کا عزت ہی اتار رہے ہوتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں بھی آیا ہے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ ایک بار ایک چھوٹے قد کی عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جب وہ لوٹ کے آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے اس کی غیبت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو کیونکہ اس کی 3 مصیبت ہے۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اس پہ گناہوں کا یلغار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غیبت کرنے والے سے بچائے اور رشتے میں اعتدال رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ بہترین ہو گیا۔ اب آپ میں سے دوسرا کون سنانا چاہے گا؟ میں سناؤں گی۔ جی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس عمل کا حصہ بننا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں گے اور ان کے خیر و خواہ ہوں گے۔ کوئی انسان پریشان حال تھا اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اپنی مشکل دور کر کے کر سکے، لیکن آپ نے اپنی صلاحیت سے اس کا ساتھ دے کر اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ تو یہ عمل تو میرے رب کے یہاں بہت کام آنے والا ہے۔ کوئی بھوکا پیاسا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ یقین سے کہتی ہوں کہ یہ عمل میرے رب کو بہت پسند آئے گا اور اس کا صلہ بھی ملے گا، کیونکہ جب وہ دعائیں دے گا تو وہ آپ کے کام ضرور آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تاکہ وہ اللہ کے گھر جب ہم پہنچے تو اس کا صلہ وہ ہمیں ضرور دے گا۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جی اب کون شیئر کرنا چاہے گا؟ جی جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے پوائنٹ کر کے ہمیں سوال دیا تھا۔ سوال نمبر 1، ہم غیبت سے کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ جواب، ہم غیبت سے اس لیے بچنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا فعل ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک
بھی آئیں اور صحابہ آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ ان دونوں عورتوں کو بولو کہ ایک پیالے میں الگ الگ الٹی کریں، اس کے بعد وہ پیالہ لے کر آئے، اس میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں غیبت کرتی تھیں۔ غیبت کرنا اتنا برا عمل ہے کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے اس عمل سے بچنا ہے۔ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کا حصہ بننا درگزر بیکار ہے، بہت ہی بیکار ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا تھا کہ سوال نمبر 2 میں کہ رشتے اور تعلق برقرار رکھنا ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ جواب، رشتے اور تعلق برقرار اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ رشتے اور تعلق برقرار اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم الہی ہے کہ اپنے رشتوں کو اچھا رکھو، اس کی بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ رشتے حقوق العباد میں سے آتے ہیں۔ اس لیے مجھ کو اس کا بہت خیال کرتی ہوں کہ اپنی ایک تو عبادت ہی نہیں ہے جس سے میں جنت میں جاؤں۔ رشتے اور تعلق اس لیے ہم برقرار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور حدیث اور سنت کی روح میں یہ حدیث اور سنت کی ہوتے ہوئے یہ چلنا نکلتا ہے کہ جب کسی کی بات ہو تو بات پوری ہو جانے کے بعد اس شخص کے تعریف کر جب چغلی کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، لاسٹ میں آپ کو نہیں خیال ہوا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو جب ان کی کوئی بات آپ کر رہی ہیں برائی سے، پھر خیال آ گیا کہ ہم تو ان کی برائی کر رہے ہیں رشتہ داروں کی، تو پھر ان کی کچھ اچھی بات آپ کر دیں تاکہ اس سے مطلب وہ فعل وہ جو غیبت اس میں نہ جائے، اور اپنے عمل ایسے بچ جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ چغلی نہیں کرتی اور لوگوں کو جب کوئی آئے آپ کے گھر تو آپ لوگوں سے اس طرح سے بات کریں۔ اب بچنا کیسا ہے، کیونکہ رشتہ دار ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اگر نہیں سنتی ہوں تو بھی برائی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بھئی اپنا عمل ہم ایسا بنائیں کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے پاس بیٹھنا بیکار ہے، تو چغلی سنتی نہیں ہے، تو پھر وہ 1-2 بار مشکلیں ہوں گی، پھر اس کے بعد حل مل جائے گا کہ ہاں ان سے اتنی ہی بات کریں۔ ہم اتنی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ دنیا کی فکر لے کر کے آئیں اور میرے گھر سے دین کی فکر لے کے جائیں، تو پھر یا تو ان کا خود کا آنا کم ہو جائے گا ایسے لوگوں کا، یا پھر ہم چغلی سے بچ جائیں گے۔ یہی میرے ذہن میں تھی اور یہی بات میں نے لکھی، اور یہ جزاک اللہ کام خیر اللہ کثیر۔ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر، بہترین ہو گیا۔ جی شہریلا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت اصل میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو برتر بتا کر دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے تاکہ دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر بیان کر دے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید شیطان نے بھی تو ابلیس جو تھا میرے لحاظ سے پہلی دفعہ یہی کیا، غیبت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ یقیناً ہم ابلیس کو مغرور ہونے کا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سماعت کے حوالے سے ان تمام باتوں سے پاک ہے، اور ہم ابلیس کو مغرور کہتے ہیں۔ پر اس میں یہ ہے کہ غیبت سننے والا اور کرنے والا دونوں ہی نقصان میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امین ثم امین، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جی خیر النساء، آپ کچھ شیئر کریں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت ساری باتیں ماشاء اللہ سننے کو ملی، میں نے تو تھوڑا سا ہی لکھا ہے اس میں۔ اچھا، غیبت کے بارے میں نے یہی بتایا کہ جیسے غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی حدیثوں میں اس میں، اور اس غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے نیکیاں اس طرح ضائع ہوتی ہے جیسا کہ آگ میں اگر لکڑی ڈال دی جائے تو لکڑی پوری کس قدر تیزی سے جلتی ہے، اس طرح سے ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور قیامت میں اگر ہم نیکیوں کا پہاڑ بھی لے کر جائے
तो इस वजह से कि हमने किसी की ग़ीबत की हो, बुरा कहा हो किसी को, तो इस तरह से हमारी नेकियाँ जो हैं ख़त्म हो जाती है। और रिश्ते निभाने के बारे में मैंने दिखाया कि अगर हम जो कता ताल्लुक करते हैं हम लोगों से, तो फिर इससे हम पुल सिरात पर भी रोक दिए जाएँगे। और हदीस हदीस में बताया गया है कि जो हमें नहीं देता हम उसको देने वाले बनेंगे, नहीं उससे उसके साथ में हमारा मामला सही करने वाले बनेंगे, अगर वो हमें नहीं भी बुला रहे तो। और जो है अगर कोई हमसे यानी कि दरगुज़र का मामला नहीं करता तो भी हम उससे मतलब उसे माफ़ करेंगे और उसके पास उसके हर मामले को हम दरगुज़र करने वाले बनेंगे, सब्र करेंगे। अपनी ज़बान से ऐसे अल्फ़ाज़ ना निकालेंगे जो बाद में है हमको उस पर पछतावा करना पड़ेगा, ये बात कहने से जो है हमारा मामला बिगड़ गया। तो इस तरह से हम अपने रिश्ते को भी मतलब निभाकर चलने वाले बनेंगे कि सामने वाले की बुराई को हम क्या है दरगुज़र करके उनकी नज़रअंदाज करके हम अपने अमाल को सही करने वाले बनेंगे। इस तरह से करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक और हिदायत अता फ़रमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला वाक़ई ये जब मैं रिफ्लेक्शन कर रही थी तो नहीं हो रहा था रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ लग रही थी जब इसकी अहादीस मैंने सर्च की और उसमें अलग-अलग तरीके से बताया जा रहा था कि ग़ीबत है क्या चीज़। पहले तो आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि ग़ीबत क्या है? तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल जो है खूब जानने वाला है। अपने भाई का इस तरह तज़किरा करना जो उसे नापसंद हो, ठीक है? और हमारे यहाँ ये बड़ा आम सा रिवाज होता है, जुमला होता है कि मैं तो वही बात कह रही हूँ ना जो उसके जो उसके अंदर है, और ये बात तो मैं उसके मुँह पे भी कह दूँगी। मुझे डर थोड़ी ना लगता है। मतलब हम ये अगर किसी को हम अगर टोक भी दें तो वो सामने से यही कहता है कि ये भाई ये तो बात उसके अंदर है ना, तभी तो हम कह रहे हैं, और मुझे कोई डर कोई लगता है, मैं तो उसको ये बात मुँह पे भी कह दूँगी। और क्या कहा आगे कि अच्छा जो वाक़ और उसके अंदर नहीं हो, आप सहाबाए कराम ने कहा कि ये तो वो बात है ना जो उसके अंदर है मौजूद। आप वसल्लम ने कहा यही तो ग़ीबत है। जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो तो बहतान है, वो तो झूठ बाँधा उसके खिलाफ और बहतान लगाया उसके ऊपर, यानी इल्ज़ाम तराशी की। तो वाक़ई बहुत संगीन जुर्म है ये। और अगर इसकी बारीक बीनी से गौर करें, मैं इसका रूट कॉज़ देख रही थी कि रूट कॉज़ क्या है। जब हम ग़ीबत का वर्ड कहते हैं ना, तो इसका जब आयत में हुक्म आता है कि आप जो है ग़ीबत ना करें, यानी तजस्सुस ना करें, टोह में ना लगें और ग़ीबत नहीं करें। इसका आप रूट कॉज़ देखेंगे तो रूट कॉज़ में आ रहा है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है ना ग़ीबत का, वो डायरेक्ट ग़ीबत नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान ग़ीबत करना चाह रहा है और उसने यूँ ही करना शुरू कर दिया। उसके पीछे बहुत सारी पीछे से रूट कॉज़ निकली हुई आती हैं, तब इंसान जो है ग़ीबत करता है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो होता है बदगुमानी से, हसद से। यानी इंसान जब नेगेटिव थॉट रखता है, उसके बारे में गलत मनफ़ी सोचें जब शुरू कर देता है सोचना, तो यहाँ से फिर स्टार्टिंग हो जाती है। फिर वो हसद में मुब्तला होता है। यानी अगर वो अपनी मनफ़ी सोचों को दरगुज़र नहीं करता और उनको अपने ज़हन में नहीं निकाल देता, तब तक वहाँ पर फिर हसद की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर हम रूट कॉज़ देखें ना, ग़ीबत कोई ऐसी तो बीमारी नहीं है ना जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है और दूसरों के अंदर पाई जाती है। ये तो टॉपिक था ही बहुत ज़्यादा संगीन। इसको तो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के रूट कॉज़ देंगे, हम अपनी ही नियत का जायज़ा लेंगे ना। तो अपनी नियत का अगर हम जायज़ा लें कि जब हम ग़ीबत कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो उस टाइम पर हमारी क्या कैफ़ियत होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है मनफ़ी सोच से। हम नेगेटिव थॉट कर रहे होते हैं और उसको हम दरगुज़र नहीं करते हैं। इंसान के सारे दिन में ज़हन में बहुत सारे ख़यालात आते हैं, हर टाइम ज़हन चल रहा है हमारा। और क्योंकि हमारी आदत है माइंडलेसली ज़िंदगी गुज़ारने की, तो सामने वाला अगर हमें बात भी कर रहा हो तब भी हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे ख़यालात कहीं और, मतलब दिमाग तो हर वक़्त काम कर रहा है और हर वक़्त ना जाने कितना सोच रहा है वो। तो वैसे तो हमें इस्लामिक पैराडाइम में हमें यही मिलता है कि ये सोच आए तो हम फ़ौरन क्या करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह माँगे। अल्लाह ने ये बताया भी आगे कुरान में कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, इबादुर रहमान होते हैं, तो जब वसवसा आता है तो वो फ़ौरन से अल्लाह की पनाह माँगते हैं। बहरहाल ये वाला काम तो हम नहीं करते। ये बदगुमानी थॉट को जो है, ये वाली मनफ़ी सोच जो है, इसको हम पालते हैं। एक बार आई, दूसरी आई, फिर कहानी बनती है, फिर वहाँ से हसद पैदा होती है। जब हसद पैदा होने लगती है, तो अब शिकायती रवैया फिर फूटता है, फिर हम शिकायत पर उतरते हैं कि यार उसने हमें बुलाया नहीं,
उसने हमसे ये कहा नहीं। शिकायत जब जैसे ही हमारी शिकायत आती है तो शिकायत का एलिमेंट जो होता है वो नाशुक्री की तरफ जाता है, यानी हम फिर नाशुक्री के अमल में मुब्तला होते हैं। अभी गीबत नहीं करी है हमने, ठीक है, अभी ये हमारी अंदर की जंग चल रही है हमसे, जहन में ये भी हमारी जो है जंग चल रही है। नाशुक्री के अमल से जब हम नाशुक्र बन चुके होते हैं तब आता है हमारा तजस्सुस का। अब हम लगते हैं टो में, उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, फला वो काम कर क्या रहा है, अब उसकी जिंदगी में क्या हुआ, अब उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो अब उसका शोहर कैसा है। जैसे लड़कियों की जब शादी होती है तो टो में नहीं लग जाते हैं, तुम्हारी ससुराल कैसी है, मतलब वो बच्ची अच्छी भली बहू बनी होती है, अब वो बुरी नहीं बनी होती, लेकिन लोग टोक टोक के उसको बुरा बना देते हैं। तुम्हारी सास कैसी है, वो नहीं इतना डीप डाउन सोच रही होती दूसरों के बारे में, और नहीं वो इतनी सेंसिटिव होती कि अगर सास अम्मी ने कुछ कह भी दिया था तो वो इग्नोर कर दिया होता। लेकिन लोग जब उससे बार बार पूछ रहे होते हैं उन्होंने जब क्या कहा था तब क्या कहा था, तो वो फिर सेंसिटिव हो जाती है, यानी हम लोग ही उसको सेंसिटिव कर रहे होते हैं कि तुम्हें मतलब रिएक्ट करना चाहिए। अब यहाँ से पैदा होता है तजस्सुस। अब टॉ में हम लग जाते हैं कि वो फलां की बेटी की शादी हुई थी तो उसके क्या हाल चाल है, खुश है, उसके साथ बहुत तेज लग रही थी, यानी ये वाली टॉकिंग शुरू होती है, तजस्सुस शुरू हो गया। अब इसके बाद है जब हम ये वाला काम कर रहे होते हैं ना, जब हम तजस्सुस के लेवल पे आते हैं, अच्छा ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तजस्सुस के लेवल पर आते हैं तो फिर ये हम फिर सामने वाले को बिल्कुल लेट डाउन कर देते हैं अपने जहन में। यानी वही जो अभी इब्लीस की मिसाल दे रही थी शहरीला, यही चीज थी ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बिल्कुल लेट डाउन कर दिया था इब्लीस ने। वो तो मिट्टी से बना है, मतलब एकदम से हकारत से कहा ना कि वो तो मिट्टी से बना है, मैं उसको सजदा करूं, मतलब आप उसको सजदा करने को कह रहे हैं कि वो जो मिट्टी से बना है, मतलब बिल्कुल लेट डाउन ऐसा कर दिया। मतलब अल्लाह की मखलूक इतनी बड़ी है और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे पता नहीं क्या अल्लाह ने हकीर सी चीज बना दी है। तो वही चीज हम सामने जब तजस्सुस पैदा हमारे अंदर हो जाता है तो फिर हम सामने वाले को फिर टो में लगते ही है, इसीलिए कि हम उसको कमतर समझ रहे होते हैं। अच्छा उसके घर में ये चीज आई है, ओहो, मतलब फिर आता है नियत पर शक। अब हमारा फिर वार होता है जजमेंटल का हमारा, अब हम जज करते हैं, सामने वाले की नियत पर शक करते हैं, पेशन गोइयां करते हैं। उसके साथ तो अब ये होगा, उसकी तो साथ इतनी तेज लग रही है, उसके साथ तो अब यही होगा, इसका तो मियाँ इस तरह लगा है, इसके साथ तो ये होगा। यानी अब आ गई पेशन गोइयां आ गई हमारी अपने आप से ही, ऐਵੇਂ ही हमने फ्यूचर डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया और उसके नियत पर शक करना शुरू कर दिया। हाँ वो हंस रही थी, अरे हंसने का उसका दिल कोई चाह रहा था, कुछ दिल में तो उसकी थी परेशानी, यानी बिला फजूल में वो बेचारी उठ करके कोई चला गया नहीं, वो उठ के नहीं गया, वो मुझे इंसल्ट करके गया, यानी अपने आप से ही आपने उसको जज किया। हालांकि उसकी हो सकता है कि कोई मजबूरी आ गई, कोई कॉल आ गई, होता है बाज़ औक़ात कि आप कॉल करें, सामने वाला आपका कॉल ना उठाए, या फिर आपका कॉल उठा ले तो बीच में कॉल कट जाए, तो क्या होता है कि उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मेरी कॉल काट दी और जानबूझ के काटी। ये जो लव वर्ड आता है ना हमारा, जानबूझ के उसने ये काम किया, जानबूझ के उसका ये इरादा था, जानबूझ के उसकी ये नियत थी। तो ये वाली चीज जो हम कर रहे होते हैं, ये हम जज कर रहे होते हैं सामने वाले को, उसकी नियत पर शक कर रहे होते हैं, और हम ये चीज भूल जाते हैं कि नियत का जो दारोमदार है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यानी नियत को तो टटोलने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है कि जो नियत को जायजा ले और नियत के बारे में बता दे कि सामने वाले की क्या नियत है। और लेकिन ये वाला काम तो जरूरत ही नहीं है साइंटिस्ट को रिसर्च करने की कि नियत इंसान की कैसी जानी जाए। हम लेडीज को अल्लाह ने पैदा किया तो है नियत का जायजा लेने के लिए, हम बेहतरीन तरीके से नियत करते हैं और टेस्ट करते हैं, और हमसे अगर कहा जाए कि किसी की नियत के बारे में किताब लिखो तो ये बेशक हम एक दो नहीं, यानी कितनी किताबें हम उसकी नियत के बारे में ही लिख देंगे कि उसकी नियत पे कितना डाउट है हमें। अस्तगफुरुल्लाह। फिर आती है हमारी, जो हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो उसकी आती इंसल्ट हम कर रहे होते हैं। अच्छा इसमें कहा ही जाता है कि जब हम किसी बड़े की भी बात कर रहे हो ना तो उसमें भी हम उसकी पीठ पीछे ना हम मतलब गीबत तो करें ही ना, लेकिन उसका बुरे तरीके से भी तज़किरा नहीं करें। मतलब अगर गीबत भी नहीं है, सिर्फ शिकायत है, नॉर्मल ही है, तो वो भी चीज नहीं करें, क्योंकि जैसे बड़े का एहतराम सामने है उसी तरह बड़े का एहतराम पीठ पीछे भी है। यानी पीठ पीछे भी उसको जिस तरह हो जाता है कि वो बूढ़ा है, वो बुढ़ा है, वो बुढ़ी है, या अगर कोई हकला है, यानी नहीं साफ बोलता तो वो हकला है, या वो ब्लाइंड है, मतलब ये वाले जो हम टैग लगा रहे होते हैं तो ये हमने ना तो सामने लगाने ना ही पीछे लगाने हैं। अच्छा ये चीज जो फिर आती है तौहीन इंसल्ट आ जाती है सारी,
मतलब वही की इज्जत की हिफाजत। तो हमसे कहा था कि हम मुसलमान एक जिस्म हैं और एक को अगर तकलीफ होती है तो दूसरा जिस्म, यानी हर किसी को तकलीफ होती है। तो ये चीज तो हमारी तालीम में ही थी। बहरहाल वो चीज हमने सब छोड़ के और हम उसकी फिर इंसल्ट पे आ रहे होते हैं, यानी उसकी हम इज्जत को हम फिर उछाल रहे होते हैं, सरेआम उछाल रहे होते हैं इज्जत को। उसकी हम नहीं परवाह करते, हम क्या कह रहे हैं सामने के बारे में, सामने वाले के बारे में, उसकी नियत के बारे में, उसके अमल के बारे में बहुत खुले आम ओपनली बोल रहे होते हैं। फिर आता है अजियत देना। अच्छा, ये वाली चीजें जो है ना, ये सब अहादीस से ही है। मैं आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह वो हदीस शेयर कर दूंगी। अजियत देना, इसमें हम सामने वाले को तकलीफ दे रहे होते हैं कि गीबत कभी भी इस तरह नहीं होता है कि छुपी रहती है। अगर कोई इंसान गीबत कर रहा है तो अगर किसी और से कर रहा है, और इस तरह नहीं हो सकता कि वो उसके सामने कभी नहीं आए। तो गीबत जब भी होती है किसी इंसान की, तो उसके सामने वो चीज आ जाती है और ये भी मालूम हो जाता है किसने क्या कहा था। क्योंकि इस चीज में भी माशाल्लाह माशाल्लाह हम औरतें बड़ी माहिर हैं और बड़ी तेजी के साथ, मतलब न्यूज चैनल तो इतनी तेजी से काम नहीं करता जितनी तेजी से हम औरतें काम करती हैं। यूं फोन घुमाती हैं और यूं एक को और दो को, और कोई अगर खास कजर ही कह दे कि भाई तुमने ये बात बतानी नहीं है, तो ओहो, फिर तो वो बच्चा जो जिद्दी बच्चा नहीं होता जिससे क्या हो नो, तो वो बच्चा नो को यस समझता और वही काम करता, उसका टारगेट बन जाता है कि मैंने काम यही करना है। वो वाला कैफियत जो है ना, वो फिर हम औरतों की हो जाती है। फिर हम तो पीछे लग जाते हैं, जिद पे उतर आते हैं कि अब तो इसने कहा ही कैसे कि नहीं बताना। अब तो पेट में दर्द हो रहा है, बीपी लो होना शुरू हो गया, तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब तक ये बात 10 लोगों को नहीं बतानी है, अपने ससुराल, अपने मैके, जिसका कोई लिंक भी नहीं है, ससुराल का हो सकता है मैके को नहीं जानता, मैके वाला तो ससुराल नहीं, लेकिन सबको बतानी है। अब फिर यहाँ से आती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप ग़ीबत से नहीं बच रहे हो तो इसका मतलब ये आपने ईमान का जो तज़किरा है ना, ईमान आपने ज़बानी तो कहा है लेकिन दिल से नहीं कहा आपने ईमान। ठीक है, यानी बेईमानी शो हो रही है यहाँ से। क्योंकि अगर इंसान दिल से ईमान कंसिडर करेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये बीमारी तो छोड़ ही देगा वो, क्योंकि ये हुक्म भी तो अल्लाह ने दिया ना, और ये कबीरा गुनाह में से है। तो इस अमल को अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, इससे बाज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम बेईमानी शो कर रहे हैं, यानी सिर्फ मुनाफिकत की तरह, मुनाफिकों की तरह की ज़बानी तो हाँ समीना वाताना, और लेकिन दिल में समीना वाताना नहीं, अमल में समीना वाताना नहीं। फिर है नकल उतारना, ये भी एक किस्म है गीबत की। इंसान जब इस हद तक बढ़ जाता है तो फिर वो नकलें भी उतारता है, कि मतलब बोलने के अंदाज भी बताता है कि वो इस तरह बोल रही थी और इस तरह चल रही थी। जैसे कि अभी हदीस कोड भी हुई ना कि हजरत आयशा ने, या इस तरह से ही हदीस आती है, तो चल के दिखाया या कद बताई। और इसी तरह से एक हदीस में आता है कि वो उसके खाने पीने का मतलब बता रहे थे सहाबा ना, कि भाई वो तो जब तक खाता ही नहीं, जब तक उसके आगे ये ना लग जाए, वो तो जब तक ये चीज ना, जब तक वो सवार ही नहीं करता। मतलब वो एक डिस्कशन नॉर्मल कर रहे थे, ये तो हम भी करते हैं। जब मैं इसको पढ़ रही थी ना हदीस को, तो मुझे लग रहा था कि ये तो बारीक, मतलब हम मोटे मोटे पॉइंट से तो वाकई बच जाते हैं, नहीं सामने से गिबत करते हैं। और लेकिन बारीकियां भी हैं गिबत की, और इतनी बारीकियां हैं कि इंसान सोचे तो दंग रह जाए। 2-3 दिन तो दिमाग ऐसा हो गया जैसे माऊफ हो गया, जो हदीस पे हदीस पढ़ी है। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, एप्स हैं तो एप्स में तो हेडिंग डालो सिर्फ, और बहुत सारी हदीस फिर मिल जाती हैं आपको मुख्तलिफ बुक्स में से। तो दिमाग माऊफ हो गया कि इतनी बारीक बीनी से तो कोई भी नहीं बचता ना। मतलब मैं तो नहीं बचती इतनी बारीक बीनी से। नॉर्मल डिस्कशन होती है तो उसमें जिक्र हो ही जाता है किसी का कि उसकी आदत ये है या फलां की आदत ये है। मतलब उसमें सहाबा इकराम सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, लेकिन वही चीज है कि एक तो मैं पॉजिटिव वे में रूटीन डिस्कस करूँ, जैसे मैं बिल्कुल ओपनली कहूंगी, जैसे मेरी लैंडलॉर्ड है, मैं उनको माशाल्लाह बहुत एडमायर करती हूँ, बशरत यहाँ पर है। इनका सुबह का रूटीन है माशाल्लाह, बहुत प्यारा रूटीन है, और मैं इसको डिस्कस करती हूँ। अब ये पॉजिटिव वे में मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये गीबत नहीं हो रही है। ये तो मैं एक कल्चर है जो मैं चाह रही हूँ कि ये सब में आम हो जाए, लोग सोचें इसके बारे में। ठीक है, और एक में नेगेटिव वे में किसी का डिस्कस करूँ। ठीक है, ये भी हमारी नियत में आ गया ना, हमने अपनी इंटेंशंस चेक करनी पड़ेंगी। हम कह तो ये रहे होते हैं कि नहीं हम गीबत थोड़ी ना कर रहे हैं, ना हम उसको इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी तो नियत नहीं है कि हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, ना हमारी नियत है कि हम जानबूझ के उसको लेट डाउन, मतलब हम लेट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम उसकी नियत पे शक नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि उसकी ना आदत इस तरह की है।
मतलब वो सहाबा करम सिर्फ एक बात कर रहे थे, एक नॉर्मल रूटीन बता रहे थे कि उसकी रूटीन ये वाली है कि जब तक ये काम ना हो जाए ना तब तक ये चीज नहीं होगा। जैसे कि हमारे यहाँ नहीं होता कि पहले होता था खैर ये चीज कि शौहर गिलास में पानी लौट के नहीं पीता था अगर बराबर में भी जग रखा हुआ जब तक उसकी बीवी ना दे दे, ठीक है। तो अब आप सोच रहे थे ये एक बात है, नॉर्मल सी बात है कि कहा जाए कि ये वो शौहर फलां शौहर और वो इस तरह नहीं करता है। अब आपने ना एक तो एक नॉर्मल कल्चर की आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, हम जब किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं और ये कोई हम एडमायर करके बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ एक नॉर्मली बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम उसकी गीबत कर रहे हैं, ये भी गीबत में ही शामिल है। अल्लाह अकबर। फिर है नकल उतारना। नकल उतारने में सब कुछ आ जाएगा कि हम उसकी बात करने का स्टाइल, उसका दुपट्टा, जैसे कुछ खातन किसी का दुपट्टा उनको बुरा लग रहा होता है, उस पहनने का तरीका, तो वो बता रही होती कि ना वो इस तरह से पहनती हैं, वो ना इस तरह से चलती हैं, वो इस तरह से देखती हैं। वो मुझे मतलब कुछ तो इतनी माशाल्लाह एक्सपर्ट होती हैं कॉपी करने में कि जब वो बात भी बयान कर रही होती है उनके लहजे में बयान करके दिखाती हैं, और उनकी निगाहें, उनका पोस्टर बिल्कुल सेम वैसी बना के दिखाती हैं। तो इट्स ऑल गीबत, यानी सबकी सब चीजें गीबत में ही आ रही हैं, वो सारी चीजें गीबत में आ रही हैं। अगर आपकी इंटेंशन मतलब आप सिर्फ जबानी भी इस तरह से आप सोच रहे हैं ना कि ये डिस्कशन जो होगी सामने और बात सामने आएगी तो सामने वाला उसके बारे में गलत सोच सकता है, तो ये सब की सब गीबत है। फिर जब हम गीबत ये सारा ऑल काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके नफ्स पे जुल्म कर रहे हैं, और हम जालिम बने हुए हैं, उसका इतना बुरा तस्करा करके, उसको गलत पिक्चर शो करके हम जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म का तो मदावा फिर भुगत नहीं है। और फिर ये सारी ऑल एक मुनाफिकत शो करने की मैंने यहाँ सिफत लिखी है, और ये वाली सिफत है मुंह पे मीठे और पीछे बैड बाय की, बेड बाइटिंग, ठीक है। मुंह पे तो बड़ी मीठा मीठा हो आप इतने माशाल्लाह, आप ये चीज मतलब बड़ा मीठा बोलना कि आपसे ज्यादा उसका रफीक कोई नहीं है, और जैसे ही वो हटा और आपने उसी का फौरन से तस्करा, जैसे कि एक चीज होती है ना कि हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो दुल्हन का डिस्कशन, उसकी दुल्हन ऐसी थी तो उसका कलर ये था, तो उसकी चाल ऐसी थी, तो इतनी लंबी थी, तो उसका चेहरा गोल था, तो उसकी आंखें छोटी थी, आंखें बड़ी थी, या उसको जेवर इतना मिला तो जोड़ा इस तरह था। फिर खाने पे आते हैं हम, अब हम ये फंक्शन की डिटेल डिस्कशन होती है। उसने खाने में ये चीज थी तो ये ठंडी थी तो ये चीज भी होनी चाहिए थी, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था, ये ओवरऑल सारी डिस्कशन जितनी भी हो रही है सारी की सारी गीबत। अब आप सोचें, मतलब ये वाली चीज हम मुनाफिकत शो करते हैं ना, वहां से तो ये कह कर आते हैं बहुत जबरदस्त फंक्शन था आपका माशाल्लाह, बड़ी अच्छी प्यारी दुल्हन मिल गई, आई भाई दूल्हे से कहते हैं, मतलब सब बड़ी मीठी मीठी बातें, और घर पे आते डिस्कशन तफसीली कि ये चीज ऐसी थी ये चीज वैसी थी, और इस सारा फिर हम ओवरऑल मुनाफिकत शो कर रहे होते हैं। अब आप सोचे ना, मतलब अल्लाह ने आप पहली चोट पे ही ना मना करा कि बाज बदगुमानी जो है गुनाह है, मतलब पहली चोट पे ही जब मना हो गया तो अब हमारे पास क्या जवाब बनता है ना कि इस चीज पर इतना ज्यादा फिर वक्त लगाएं और आगे बढ़ाएं। यानी अगर फर्स्ट चीज पे फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रही है, और नेगेटिव थॉट पर अगर इंसान बात आ जाए और मतलब उसको फौरन से आउज़ बिल्ला कर ले, एक बार आएगी, दो बार आएगी, बार बार आएगी, लेकिन बार बार आने के बावजूद भी अगर इंसान उसको दफा करने में कामयाब हो जाए तो फिर वो इस चीज से बच जाता है। अच्छा, एक आयत है आ, हम्म अच्छा ये है सूरह हुजरात की आयत नंबर 12। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ठीक है, ए ईमान वालो, ईमान वाले हम हैं, और जब ईमान वालों का आता है इम्फेसाइज, जब अल्लाह पाक ईमान वालों कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम फुल ऑन अटेंशन अब इस आयत को सुने और समीना वाताना फौरन से हम कर लें। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला की गुमानी बदगुमानी करने से बचो। क्यों बचो? क्योंकि बाज गुमानी जो हम कर रहे होते हैं वो गुनाह है। वला तजस्ससु, और ना तुम टो में पढ़ो, वला यक्तुब बाज़ुकुम बाज़न, और ना ही तुम गीबत करो। अच्छा, जब मैं इस आयत को देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर वही चीज आ गई, पहली चोट जो गीबत की आती है वो बदगुमानी ही आती है। अल्लाह ही खुद पहले हाईलाइट अल्लाह ने बदगुमानी को करा, उसके बाद फिर तजस्सुस को करा। यानी इंसान पहले बदगुमान होता है, उसके बाद फिर तजस्सुस में, यानी ये सारे एलिमेंट उसके अंदर चल रहे होते हैं, हसद के, शिकायत के, नाशुक्र के, फिर वो तजस्सुस की टो में ना पड़ जाता है, उसकी टो में
पीछे लग जाता है, वही मैंने कहा ना, जिद्दी बच्चे की तरह पीछे लग जाता है, किसी को कॉल लगाएगा, उसके घर जाएगा और किसी के बात करने के जरिए उगलवाना चाहेगा कि फलां इंसान किस तरह रह रहा है, घर में क्या चल रहा है। फिर आती है गीबत की। अल्लाह पाक कह रहा है ना कि बदगुमानी से बचो और टो में ना लगो और गीबत मत करो। मतलब थर्ड लेवल पर फिर हम आ रहे हैं गीबत की। इंसान अगर बदगुमानी के लेवल पर अगर अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाए तो ये वाले जो अंदर उसकी जो गड़बड़ चल पड़ती है ना, फसाद अंदर जो हो जाता है, हसद का, शिकायत का, नाशुक्री का, तो ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। यानी जैसे ही हमें जैसे तमीज हमें सिखाया गया है इस्लाम में कि हसद हो किसी इंसान से तो फौरन से दुआ कर लें हम कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, कि अल्लाह आप उससे भी बढ़कर दे दीजिए, यानी अपने फजल अज़ीम से हमें जो है आप दे दीजिए। किसी का कोई चीज अच्छी लगे तो वहीं से हम हसद का जब हम ये वाला इलाज कर लेते हैं तो हसद खत्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, फिर आती है, अच्छा मैं लेवल पर भी गौर कर रही थी कि गिबत करने में भी लेवल होते हैं, और लेवल ये होते हैं, एक तो होता है कि गिबत करने वाला होता है, यानी हमें पहचानना पड़ेगा ना हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं, तभी तो उसका हम इलाज करेंगे। एक है गिबत करने वाला, यानी वो बदगुमानी करता है, टो में भी लगता है, फुल ऑन गिबत करता है, ये उसकी हैबिट है, ये पहचानना पड़ेगा, ये हैबिट में बन जाता है उसका, कि जब वो इंसान बैठता है तो बस उसके मुंह से गिबत ही निकलती है, वो दूसरों को तज़किरा ही करता है। ठीक है। दूसरा होता है गिबत सुनने वाला। अच्छा, ये लोग भी होते हैं हमारे मुआशरे में, वो बोलते कुछ नहीं है, कुछ लोगों के बारे में हम कहते हैं ना कि ये तो बड़े गहरे लोग हैं, ये इनको तो कोई भी बात बता दो और ये इधर की उधर नहीं करते हैं, और बहुत मतलब इनका बहुत गहरे हैं ये, और ये बात इधर की उधर नहीं करते, लेकिन वो गीबत से रोकते भी नहीं है किसी को। मतलब उनके सामने कोई भी आके दुबला रो जाता है, कोई भी किसी का भी तस्करा कर देता है, वो हाँ इधर की उधर तो नहीं करते, लेकिन हाँ खूब फुल ऑन सुनते हैं और फुल ऑन उसका हम बढ़ावा देते हैं, लोग आज से उनसे शेयर करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है कि गीबत करता भी है और सुनता भी है, कभी कभार। ठीक है, ये समटाइम्स होता है कि उसने गीबत, किसी ने कोई डिस्कशन करा उसके सामने तो उसने कुछ वर्ड्स बोल दिए, हाँ वो है ही ऐसा, हाँ वो ऐसा ऐसा करता है, हाँ उसकी हैबिट है, मतलब वो अपने आप से खुद ही से उसकी नियत पर इंटेंशन डाल के और आपने अपने मुंह से गीबत कर दी, मतलब फुल ऑन नहीं करी लेकिन थोड़े बहुत आपने उसको कर दी, और सुन भी ली थोड़ी बहुत, आपने कहा छोड़ो रहने दो, लेकिन वो छोड़ो रहने दो में भी यानी कितनी आपने सुन ली, सुनने के बाद फिर छोड़ो रहने दो, और ऐसे ही होता है, आजकल लोग ऐसे ही हो गए हैं, और ये पूरा आपने बात करके, ये कैटेगरीज आ गई हमारी। अब इन कैटेगरीज में हमने अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में, हम गीबत करने वाले में हैं, गीबत सुनने वाले में हैं, या तीसरी कैटेगरी में है कि कभी कभी सुन भी लेते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं, मुंह से निकल भी जाता है। इन चीज का हमें जायजा लेने पड़ेगा, और जब हम इसको हम देख सकेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में, तो उस हैबिट को, फिर वही हैबिट फॉर्मेशन वाली बात आ जाएगी कि इस हैबिट को तोड़ा किस तरह जाए। ठीक है। अच्छा, मैं जो गौर कर रही थी ना, तो वो मैं इस पे गीबत वो गौर कर रही थी कि कौन से एलिमेंट होते होंगे कि इससे बचा जाए, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि गिबत नहीं करनी है तो इसका मतलब ये अमल आसान होगा छोड़ना, मुश्किल तो नहीं होगा। और क्योंकि अल्लाह ने वो चीज तो हमसे कही नहीं है कि ला तुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारे वुसअत से तो अकॉर्डिंग वुसअत से ज्यादा तो कुछ भी नहीं डाला अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर। यानी अगर अल्लाह ने कहा है कि बदगुमानी नहीं करो, टो में मत लगो, गिबत नहीं करो, तो इसका मतलब ये है कि हम बाज आ सकते हैं, ये वाला जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने ये मुश्किल नहीं है। तो मैं इस तरह से देख रही थी, मैंने कुछ फिर लेक्चर्स भी सुने थे, और एक बेचारे थी एक फ्रेमवर्क मिले कि जिससे हम वाकई अमल पेरा हो। मतलब ये तो पता है कि गिबत गलत है, लेकिन इससे बचा किस तरह जाए ना। तो एक तो मुझे इसमें ये सॉल्यूशन दिख रहा था, जैसे कुछ मैंने लेक्चर भी सुने, उसमें से भी निकाले थे मैंने, डॉक्टर फरहत हाशमी के लेक्चर सुना था, और कुछ मैंने अपने आप पे भी गौर करके अपने आप से गौर करके करा कि इसका सॉल्यूशन ये बन सकता है कि जब आप, एक तो अगर ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिबत है ना, अब तो दो तरह से गिबत होती है, एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में। यानी डायरेक्ट वे में कि बराह रास्त सामने से आपसे कोई कॉल बात कर रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में कि आपसे बराह रास्त कॉल करके बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, कॉल करने में ऑप्शन आपके पास ये होता है कि रिसीवर आप अपने कान से हटा लें। ठीक है, ये एक बिल्कुल बहुत बेहतरीन अमल का पॉइंट है। आपको पता है सामने वाला इंसान जो है
وہ فرسٹ کیٹیگری میں ہے, وہ غیبت کرنے والا ہے, فل آن غیبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ٹائم پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو روکیں, کتنا روکیں وہ نہیں بات آئے گا. وہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, آپ روکتے ہیں وہ ایک ٹاپک کے بعد دوسرا ٹاپک, دوسرے کو آپ روکیں گے تیسرا ٹاپک, تیسرے کو روکیں, مطلب ان کا مشغلہ ہی غیبت کرنا ہے. جیسے کہ ابھی بشرا صاحبہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مشغلہ ہی غیبت کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, تو وہ فرسٹ کیٹیگری میں ان کا مشغلہ غیبت کرنا ہے, لوگوں کو ڈسکشن کرنا ہے, لوگوں کی آگے کھول کے ہمیں بتانی ہے ساری. تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریسیور کان سے ہٹا لیں, کہ جب وہ فلاں انسان کا ذکر کریں تو فوراً سے کان سے ریسیور ہٹا لیں, پھر کان پہ لگا کے دیکھ لیں ابھی کیا بات کر رہے ہیں, پھر کان سے ریسیور ہٹا لیں. یعنی یہ احتیاط ہم اپنی کرنے کہ بھائی ہم نے سننا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی ہم سے بات کر رہا ہو, چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو ہم دھیان رکھیں کہ ہم جو ہے ہاں اچھا یہ بھی نہ بولیں. اگر ہم ہاں اچھا بھی بول رہے ہیں نا, ہم یعنی پھر سننے والی کیٹیگری میں آ جائیں گے نا. اگر ہم ہاں اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم سننے والی کیٹیگری میں, تو ہم نے سننے والی کیٹیگری میں بھی نہیں جانا ہے. تو اس کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا پازیٹیو پہلو جو ہے ہم نے بولنا ہے. یہ تو پھر حدیث سے بھی آتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دفاع کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا جو ہے دفاع کرے گا. آپ کسی انسان کی جو ہے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. یعنی آپ جو ہے پازیٹیو پہلو جو ہے ہائی لائٹ کر دیں. اگر وہ کسی انسان کا اسپیسیفک انسان کا ذکر کر رہا ہے, نام لے کے ذکر کر رہا ہے, تو آپ کیا کرو, اور سامنے والے کا دکھ رہا ہے کہ وہ آپ کے رشتے سے, عہدے سے, عمر سے بڑا ہے, آپ اس کو ٹوکیں گے تو اس کو ہرٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ یہ والا جو عمل ہے نا, یہ اعلان کر کے نہیں کیا جاتا. جیسے کہ انسان جب جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کر کے سچ بولنا سیکھتا ہے, تو وہ یہ اعلان نہیں کرتا ہے کہ میں اب سچ بولتی ہوں, میں اب سچ بولتی ہوں. وہ اعلان نہیں کرتا, وہ لوگوں میں خود ہی بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے. اسی طرح جب انسان غیبت کانشیس ہوتا ہے نا کہ غیبت نہیں کرے گا, تو یہ بات بھی خود ہی عیاں ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ غیبت کرنے والا نہیں ہے, اور کسی بھی لیول پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی سی بھی کیٹیگری میں نہیں ہے. تو اس کو ہم اعلان نہیں کرتے. تو اب جب ہمارے سامنے کوئی عہدے میں بڑا اور رشتے میں بڑا بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر ہم پازیٹیو پہلو کو ہائی لائٹ کریں گے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ آپ پازیٹیو پہلو, جب وہ کسی کا نیگیٹو ڈسکشن کرے تبھی آپ اس کی کوئی اچھی بات سامنے لا کے رکھ دیں. نہیں میرے ساتھ تو اس نے یہ ماشاءاللہ اچھا یہ والا کیا تھا, اس کی تو مجھے بولنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے. یعنی کچھ بھی اس کا پازیٹیوٹی آپ نے شو کر دینی, تاکہ اس کو سامنے والا دوسرے پہلو سے بھی دیکھ سکے. اچھا پھر کیا ہے, پھر جیسے ایک گروپ میں بھی کبھی کبھی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, تو کسی کا ڈسکشن آ جاتا ہے, تو وہاں پر ایک تو یہ نا کہ 1-on-1 بیس پر بات ہو رہی ہے, ایک ہے کہ ایک گروپ میں بات ہو رہی ہے. گروپ میں بات ہو رہی ہے تو ایک آپشن وہاں پر بڑا اچھا یہ آ جاتا ہے, 2-3 آپشن آ جاتے ہیں. وہاں سے ہٹنے کے آپشن آ جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بات کاٹ دو, گروپ میں بات ہو رہی ہے تو آپ ویسے انڈیویجول طور پہ بھی اگر 1-on-1 بیس پہ بھی بات ہو رہی ہے تو آپ بات کٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ میں نے یہ سوچ رہی تھی, یعنی ہم بات کو کٹ کر دیں اور ٹاپک چینج کر دیں. اسی طرح گروپ میں بھی ٹاپک چینج کر دیں, لیکن آپ نے کوشش کر لی, آپ نے گروپ کو ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کر لی, بات کٹ کرنے کی کوشش کر لی, پازیٹیو پہلو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر لی, لیکن سامنے والا جو ہے نا, ان میں سے گروپ میں ایک ہی بندہ اس طرح کا ہے, غیبت کرنے والا ہے, وہ نہیں بات آئے گا. اب آپ وہاں پہ کیا کریں گے, وہی جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اعراض برتنا ہے, یعنی اٹھ کے چلے جاؤ ایسی مجلس سے, پھر اٹھ جاؤ, پھر مطلب پانی کے بہانے سے, واش روم کے بہانے سے, نماز کے بہانے سے, کال کے بہانے سے. یعنی اب تو بہت سارے بہانے ہیں نا ہمارے پاس, ہمیں بہانے بھی تو دین میں دیے نا, ہمیں نماز کا بہانہ دیا ہے, وضو کا بہانہ دیا ہے, پانی کا بہانہ دیا ہے, کسی کی کال کا بہانہ دیا ہے. یعنی ہمیں بہانے ہیں ہمارے پاس, حلال بہانے ہیں, ہم ان بہانوں کا استعمال کر کے وہاں سے نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ والی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک دیندار شخص جب بن جاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, اور سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ دیندار ہیں, یا آپ پڑھا رہے ہیں, یا آپ پڑھ رہے ہیں, یا آپ قرآن جان رہے ہیں, مطلب یہ چیز تو دوسرے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ آپ سے اپنا ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, کسی کے بارے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو وہاں پر فوراً سے فلٹر لگا دینا ہے. جب بھی کسی کا مشورہ کوئی لینا چاہے, کسی اپنی ساس کے معاملے میں, اپنی نند کے معاملے میں, اپنے شوہر, اپنے بچے, فوراً سے فلٹر یہ لگا دیں کہ نام نہیں مینشن کرنا, ٹھیک ہے. وداؤٹ نیم مینشن کرے, پرابلم ڈسکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی پرابلم ڈسکس ہو جائے, وداؤٹ نیم مینشن کرے کہ فلاں ہیں وہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ کرتی ہیں, اور میں ان کو یہ مطلب یہ فلاں کر کے
का कर दिया, नाम बिल्कुल हटा दिया, रिश्ता बिल्कुल हटा दिया, ना रिश्ता सुने ना नाम सुने, कुछ नहीं, एक नॉर्मल जो प्रॉब्लम है फौरन से फिल्टर लगा दें कि जो प्रॉब्लम है बस उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो, ना कि उस करेक्टर को डिस्कस करो, करेक्टर को मत डिस्कस करो, नाम को मत मेंशन करो, सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करो। आपको क्या लगता है कि जो ये बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं और उलमाए कराम होते हैं, क्या वो हमारी गीबतें सुनते हैं? वो गीबतें नहीं सुनते हैं। वो अगर आप उनके सामने बार बार कर भी रहे होते ना, सामने से ना कि शौहर नहीं कह दिया, वो शौहर नहीं कह दिया, शौहर को नहीं सुन रहे होते, वो उस टाइम पे सिर्फ आपका मसला सुन रहे होते हैं। अच्छा मसला क्या है, पूछ कहते भी हैं ये मसला क्या है, मसला बताओ मसला क्या है। हमें फिर मसला ही बताना है। ये हमने अपने आप से भी एहतियात करनी है कि अगर हमें किसी से मशवरा चाहिए, किसी से कोई डिस्कशन चाहिए और हम कुछ कंफ्यूज हैं, या अपने औलाद के मामले में या अपने कोई भी रिश्ते के मामले में हमें डिस्कशन चाहिए, हमें मशवरा चाहिए, तो हम उस करेक्टर को रिमूव कर देंगे, सिर्फ स्टोरी जो बचेगी, जो प्रॉब्लम बचेगी उसको हाईलाइट करके बताएंगे ये मुझे मसला आ रहा है और इस मसले का मेरे पास क्या सोल्यूशन, मुझे क्या सोल्यूशन मिल सकता है, यानी ओवरऑल डिस्कशन होगी। तो मुझे लगता है इस चीज से हम इंशाल्लाह बच सकते हैं, क्योंकि ये जब अल्लाह पाक ने कहा है कि आप ग़िबत बच सकते हैं, ये इसको आप छोड़ सकते हैं, तो फिर ये आसान है, आसान चीज है। और एडिशन नहीं करनी, कोई भी अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है और मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जो अपनी औलाद के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, उनके औलाद ने उनको सताया होता है और वो चाह रहे होते हैं कोई सुनना। एक तो ये है कि वो बूढ़े लोग आपको पता है कि सबसे ही शेयर करते हैं, तो वहां पे भी नहीं सुनना है, राज करना है। और एक लग रहा है कि नहीं, वो बूढ़ा इंसान जो है वो सिर्फ आपसे ही शेयर करता है, किसी से इधर उधर ग़िबत नहीं करता, लेकिन आपसे अपना दुखड़ा शेयर कर लेता है। तो वो आपसे अगर अपने बच्चे के बारे में, कुछ किसी के बारे में अगर वो डिस्कशन कर रहा है, तो आपने अपनी नीयत का जायजा लेना है कि आपने उसके बच्चे के खिलाफ जज नहीं करना। दूसरा, फिर एडिशन नहीं करनी, हाँ वो तो है ही बुरा, मैंने भी देखा था, वो इसके अंदर थी यही आदत, मतलब एडिशन नहीं करनी। उस टाइम पे फौरन से ब्रेक लगा के रखना है, अपने मुंह वहां पे भी ब्रेक लगा के रखना है, सुनना है, उसके बाद फिर उस बच्चे का या किसी का भी जो वो डिस्कशन कर रही हूँ उसका दिफा कर देना है फौरन से, कि नहीं वो तो भाई बहुत बेहतरीन है, वो तो बहुत उसके अंदर ये क्वालिटी, यानी क्वालिटीज को हाईलाइट कर देना। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमें सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं ना किसी भी इंसान के, वो हाईलाइट कर रहा होता है, पॉजिटिव पहलू जो होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। क्यों आप वसल्लम ने कहा कि औरतें जो है सबसे ज्यादा नाशुक्री होंगी और नाशुक्रीपन की वजह से वो जहन्नम में जाएंगी। वो इसलिए ही कहा है क्योंकि हमारी ज़हनियत जो होती है बिल्कुल इसी तरह होती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा मामला हो रहा है तो हम बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, एक वो उससे गलती हो जाए तो फिर सारे अच्छे पे हमने घड़ोमन पानी डाल के उसकी सिर्फ एक बुराई के ही बुरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं, और इस कदर पीछे पड़ते हैं कि उसको फिर कभी छोड़ते भी नहीं है, उसका डिस्कशन हमेशा कंटिन्यू रहता है। यानी सब बुरा अच्छाइयाँ पानी में गई और अब जो बुराई थी उसकी, चाहे वो एक ही बुराई थी, और वो हमेशा बरकरार रहेगी। तो इस चीज पर हमें वर्क करना है, क्योंकि ये चीज पेशेंट गोई तो है ना कि नाशुक्री औरतें जो है बहुत ज्यादा जाएंगी, और नाशुक्री भी किसकी, शौहरों की नाशुक्री, तो ये बहुत चीज है। शौहर की नाशुक्री बहुत तेजी से औरतें करती हैं, यानी हल्की सारी कोई बात हुई फौरन से हस्बैंड के पीछे पड़ जाना और उनके नाशुक्रीपन शुरू कर देना, वो ये नहीं करते वो नहीं करते, यानी इस तरह हो जाती है कि तुमसे तो कभी खैर मिली ही नहीं, मतलब वो पूरी जिंदगी आपके लिए लगाए दे रहा है और आपसे कभी उसको आपको कभी उससे खैर ही नहीं मिली। तो ये वाली चीज है। अच्छा, इसमें अजाब की बात थी, अजाब जो है बहुत खतरनाक था, मैंने जब पढ़ा इसमें, एक तो कब्र का अजाब आएगा इसके अंदर जो ग़िबत करने वाला है, और क़यामत के दिन हलाक होगा वो, क्योंकि कबीरा गुनाह में से है ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि एक शख्स के नाखून के तांबे थे और वो अपना चेहरा, अपना सीना नोच रहा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि क्या कौन शख्स है, तो कहा कि ये ग़िबत करने वाला है। ग़िबत का बेसिकली होता भी क्या है, हम इज्जतें उछाल रहे होते हैं, तो जो ये काम करता है इज्जतें उछालता है, तो जो लोगों के सामने रुस्वा करता है, तो अल्लाह भी दुनिया में ही उसको उसके घर में रुस्वा करते हैं। ये वाला मतलब ठीक है, क़यामत का अज़ाब तो ठीक है, कब्र का अज़ाब भी ठीक है, आई नो बहुत सारे अज़ाब हैं कब्र के भी, क़यामत में भी, मतलब वो तो हमने पढ़ी हुई है ना हदीस है, तो होता है कि हाँ, पता है पता है पता है। लेकिन अब जब दुनिया की बात आती है ना, तो जैसे किब्र की आती है ना, कोई इंसान दुनिया में किब्र करेगा तो कुछ जराइम इस तरह है कि उनको दुनिया में ही बदला मिलता है। तो जो इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह ताला उसका जरूर मुंह के बल गिराता ही गिराता है दुनिया के अंदर, और लोग इबरत लेते हैं उससे।
बहरहाल ये वाला जो है ना कि दुनिया में ना घर में ही रुसवा करेगा। आप इमेजिन कि मतलब वो रुसवा तो होगा, एक तो ये ना कि रुसवा होगा, बीमार हो जाएगा, पड़ा रह जाएगा, उसको कोई मुंह उठा के नहीं देखेगा, नहीं नहीं, वो घर में रुसवा होगा, मतलब उसके घर वाले उसको रुसवा करेंगे, जलीलो ख्वार करेंगे, जो दूसरे की गीबत करने वाला है। ओहो, मतलब ये चीज हम कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते कि हम कहते हैं ना शिकायतें होती हैं हमें इन लॉज से, अपने खानदानों से, हम ये नहीं सोचते कि हम क्यों घर में रुसवा होते हैं। वो घर तो है हमारा, हम घर में क्यों रुसवा होते हैं। वो हम ये नहीं सोचते कि ये अजाबी तो सूरत पड़ रही है हमारे ऊपर, कि ये जो गीबत के जो सिलसिले चलते आ रहे थे, उस गीबत के सिलसिले की वजह से ही हम घर में रुसवा हुए हैं। मतलब कितनी बड़ी चीज है ना कि घर में रुसवा होगा। और कब्र में आता है कि एक तो कब्र में अजाब भी मिलेगा, फिर उस इंसान की कब्र के बाहर से जो है बदबू भी आ रही होगी। तो ये जो है बहुत खतरनाक अमल है, और अल्लाह ताला बचाए हमें इस चीज से। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बारीक बीनी से हम लोगों ने इस पर किया है रिफ्लेक्शन, तो ये यूं ही नहीं जाएगा, ये ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह, और इस पर हम लोग ज़रूर वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। बस हाँ, यही तक थी बात मेरी। आप में सब किसी का कोई सवाल है तो बताएं। जी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ कीजिए, कुछ ना कुछ तो होंगे। मेरे अंदर तो मैं गौर कर रही थी, तीसरे नंबर वाली है बुराई, सुनती भी हूँ कभी कभी तो। हाँ, बस सब लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब में से ये वाली गंदी आदतें निकल जाए। अल्लाह ताला ज़ाहिरी भी और जो बारीक बीनी से है ना कि जैसे सूद का कहा जाता है ना कि इंसान बाल के बराबर भी सूद में मुब्तला हो जाएगा। मतलब इंसान को जब सूद से बचना होगा तो उसको बारीक बीनी के साथ अमल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे घेरे हैं सूद के जो हथकंडे लगे हुए हैं कि पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव है, सूद है वो। तो जिस तरह से सलाम ने कहा, इसी तरह इसकी भी बारीक बीनी है। यानी वे सोच रहे थे जो हराम चीजें हैं ना, तो उनकी बारीक बीनियां हैं। जैसे कि जिना का नहीं आता कि जिना सिर्फ ये नहीं है कि एक औरत और एक आदमी के बीच में कोई इलीगल रिलेशन बना तो वही जिना है, नहीं। जिना वो भी है कि अगर किसी नामहरम के साथ और वल्गैरिटी वाली बातें हो रही हैं, यानी बिल्कुल बेहयाई की बातें हो रही हैं, ये भी जिना है। जिना वो भी है जो आंखों से मतलब देखा जा रहा है। मतलब बहुत सारे सीन्स होते हैं, और बकायदा इस टॉपिक की जो है अल्लाह अकबर मूवीज ही बनती है, तो वो जिना है। मतलब आप जिना से बचने की बात आ रही है तो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी इंसान के फिजिकली रिलेशन में नहीं आ रही हैं। जिना से जब बचने की बात आ रही है तो बारीक बीनी के साथ आपने अमल करना होगा। बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, कान पे भी, आंखों पे भी, दिल पे भी, यानी बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, जबान पे भी फिल्टर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप जिना से बचेंगे। इसी तरह हम किसी जिसे झूठ की बात कर रहे हैं हराम है, तो झूठ ये नहीं है सिर्फ सामने वाले की झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, तो कभी बचने के लिए भी झूठ नहीं बोलना। यानी जब हम झूठ की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो फिर बारीक बीनी भी आ जाती है कि आप मजाक में भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसे भी नहीं बोलेंगे, वैसे भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह जब हम गीबत की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने करनी नहीं है या सुननी नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, आपने जो जहन में सोच रहे हैं वो आप पौधा डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं ना बदगुमानी करके, और वो बीज को ही आप रिमूव कर देना है। जब जैसे बीज पड़ गया वैसे ही गिबत शुरू हो गई, बस ये वाली चीज है। और जैसे ही बीज पड़ा वैसी मुनाफिकत शुरू हो गई। मतलब ओवरऑल सारी चीजें इसके अंदर आ रही ना। हम जब गिबत से बचने की बात कर रहे हैं तो हम किसी की नकलें नहीं उतार सकते, किसी की हम मतलब वैसे भी जिक्र नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल डिस्कशन भी नहीं कर सकते कि भाई फलां की आदत इस तरह की है, या फलां इस तरह चलता है, या फलां इस टाइम खाता है। मतलब उस फैक्ट में कि अगर आप उसको नेगेटिविटी में शो कर रहे हैं, यानी आप उसका कोई एडमायर करते हुए नहीं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं कोई वैल्यू कायम करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि वैल्यूज की, जब हम अपने घर में इक़्तिदार एक वैल्यू बनाते हैं, तो वैल्यू जब हम बनाते हैं ना, तो ये तो खैर इंशाल्लाह हमारी डिटेल अपनी हमारे उसमें पीटीसी से ही बात आएगी। जब हम वैल्यू बना रहे होते हैं तो बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल हमें चाहिए होता है। रोल मॉडल हमेशा पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन बाद का कुछ वैल्यूज के लिए, स्पेशली वैल्यूज के लिए, हमें दूसरों को भी रोल मॉडलिंग करके दिखाना पड़ता है कि आपने उन फला इंसान को देखा है,
उनका कैसे बोलने का तरीका है, तो हमें भी फिर इसी तरह से बोलना है। या फलां इंसान को देखा, उनके घर का ये पैटर्न है, तो आपने भी ये पैटर्न चूज करना है। यानी बच्चों के सामने जब हम एक वैल्यू बना रहे होते हैं, तो उस वैल्यू के लिए हमें बच्चों के सामने किसी और इंसान की भी डिस्कशन करनी होती है। वो जो हम दूसरे इंसान का डिस्कशन कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, तो वो हम पॉजिटिव पहलू में कर रहे होते हैं, वो वाली बातें लेकर आते हैं जो हमें चाहते हैं कि वो हमारे घर के अंदर भी आए। तो ये वाली चीज आ गई कि एक तो पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में कि वो तो इस टाइम खाता है, इस टाइम उठता है, इस टाइम सोता है, फला नाम लेके बकायदा। एक तो ये कि उमूमी बात हो रही है, कल्चर वाइज हो रही है कि अब तो भाई सब 12 बजे सो के उठते हैं या रात को 12 बजे सोते हैं। तो ये तो एक हम स्पेसिफिक नाम ले दे कि वो फला 12 बजे उठता है, वो फला 12 बजे सोता है, यहाँ पर फिर ग़ीबत आ गई। तो बहुत सारे फिल्टर लगाने पड़ेंगे जबान पे अपनी और सोचों में भी। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि ग़ीबत नहीं करनी, ग़ीबत नहीं सुननी, और भी बहुत चीजें हैं ग़ीबत के अंदर जो शुमार होती है। जी शहनीला, आप कुछ कह रही हैं? यहाँ पर एक वो बात है, जब हम लोग टॉक शोज देखते हैं खबरों के स्टाइल में, लाइक खबरनामा ही होता है लेकिन वो टॉक शोज होते हैं, तो उसमें तो फुल टाइम ये ग़ीबत ही चल रही होती है, वो हम सुन रहे होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं कि उसमें कोई भी 100% ऑथेंटिक बात अगर हो भी तो वो ग़ीबत ही चल रही है मेरे ख्याल से। तो फिर हम उसको तो मेरे दूर ही रहना पड़ेगा। और सेकेंडली सीधा जब आप फेसबुक पे कोई मैसेजेस वगैरह शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, तो वो भी दूसरे लोगों के हवाले से जो बातें चल रही हैं या कुछ मीम्स जो बन रहे हैं, तो हम उसको भी ग़ीबत ही कंसिडर करेंगे। बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि कुछ तरह के स्टेटस इस तरह के होते हैं कि बहुओं ने सांस के खिलाफ लगाए होते हैं कि सांसों को इस तरह का नहीं होना चाहिए, या अगर कुछ घर में शिकायत हो गई, घर में कोई बात हो गई, तो ओवरऑल वो वाला स्टेटस डल गया कि आज भाई शौहर से झगड़ा हुआ है तो वो वाला स्टेटस डल गया, आज ये हुआ है, तो मतलब वो उस इंसान की फिर साइकी समझ में आ रही होती है स्टेटस देख के कि घर में कोई मसला हुआ है। तो ये वाले जो हम स्टेटस डाल रहे हैं बेशक ये बिल्कुल ग़ीबत है। और एक और कि हम एक इस नियत से डाल रहे हैं कि अपने आप नहीं डाल रहे, अपने आप कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन किसी का लेक्चर हम पोस्ट करे दे रहे हैं ना अपने स्टेटस के ऊपर, कोई किसी स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में बोल रहा है। अगर दादी ने बच्चे को डांट दिया तो अब हमने वो वाला लेक्चर हाईलाइट कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि बच्चों को नहीं डांटना है, लेकिन नियत क्या थी कि वो मेरे ससुराल वाले ना वो सुन लें ये वाला लेक्चर। ये भी ग़ीबत आ गई। यानी आपने काम खैर वाला किया, चाह ये रहे थे कि उस इंसान को एक पॉजिटिविटी मिल जाए, वो इंसान बाद आ जाए, लेकिन बैकग्राउंड में क्या था, बैकग्राउंड में थॉट ये थी कि ये इंसान जो है इसको अक्ल आ जाए, इस लेक्चर के थ्रू ना इसको अक्ल आ जाए कि ये बहुत बुरा है, बहुत जालिम है, ये बड़ा गलत अमल करता है। तो ये भी चीज बिल्कुल ग़ीबत में आ गई। और जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ होता है कपिल शो आता है, एक दिन मैं शो देख रही थी, वो फुल ऑन मतलब मजाक, और मजाक में दूसरे को लेट डाउन करते हुए मजाक, मतलब इतना मजाक, मतलब एक मजाक है, आप एक नॉर्मल बात करो ना, आपसे सल्लम ने भी तो मजाक करा, आपसे सल्लम कोई हर वक्त मुंह सुजाए थोड़ा ना बैठे होते थे, आपसे सल्लम बेहतरीन अखलाक उनका, तो मजाक भी करते थे। तो वो मजाक नहीं हो रहा है उसके अंदर, उस मजलिस के अंदर मजाक नहीं है, उस मजलिस में जो है किसी भी करेक्टर को उठा लिया जाता है, उसका डिस्कशन होता है, तो ये बिल्कुल ग़ीबत में शुमार है। ऐसे जो शोज हैं हमें खुद भी नहीं देखना चाहिए और बच्चों को भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद, क्योंकि वो जो चीज है ना कि हम जो चीज अपने अंदर डाल रहे हैं वो हम बन रहे हैं। जाहिर सी बात है जब इस तरह के शोज हम डालेंगे अपने अंदर, तो फिर इसी तरह की तो आउटपुट होएगी, फिर हम भी इसी तरह का बोलेंगे, किसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की कोई स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करके बोलेंगे। तो बिल्कुल ये सारा चीज जो है ग़ीबत में आ रही है। जी अब किसी का कोई सवाल है इसके रिलेटेड, या हम इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करें फिर? अच्छा जी, ट्रांसलेशन सबने याद करी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर नहीं सुनूंगी, जिसने नहीं याद करी है वो सुना। नहीं की हुई है। अच्छा, आप ही के सुनते हैं फिर। अच्छा माशाल्लाह। मेरा जी नहीं निकल पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, उसका कुछ कीजिए, फिर से भेजिए आप मुझे, इस बार हो ही नहीं है, बार बार वो पासवर्ड मांगता है जब मैं प्रिंट में डालती हूँ, और वो पेज रहता है ना तो मुझे याद करना बहुत आसान होता है, मैं एक एक दो दो पेज लेके घूम घूम के कर लेती हूँ याद, ऐसे तो मुसहफ लेके घूमना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है।
मैंने आपको दोबारा वैसे शेयर किया था, उसमें भी पासवर्ड मांग रहा है। जब ऐसे कर रहा था, जब मैं प्रिंट में डाली ना तो प्रिंट लेने से पहले फिर पासवर्ड मांगने लगा उसका। अच्छा, ये करुणिसा को भी वैसे ही मसला आता है। पासवर्ड तो मांगता है, लेकिन वो शायद उसको पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं किसी तरह से, मुझे नहीं इससे मालूम। पहले बेटा हो जा रहा था, इससे पहले जितनी बार भी था तो मैं परेशान नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है, वो ले ही नहीं रहा है प्रिंट। हो सकता